நம் வழக்கத்தின்படி ஒவ்வொரு வாரமும் தேவனுடைய குணத்தை அறிந்து அதை தியானித்து நாம் ஆராதனைக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம். हमारी रीति के अनुसार प्रत्येक इतवार हम परमेश्वर के गुण को अध्ययन करके फिर आराधना में प्रवेश करते हैं. அதேபோல் இந்த நாளிலும் ஆண்டவருடைய ஒரு குணத்தை நாம் தியானித்து அவர் எப்பேற்பட்டவர், என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை அதை தியானித்தவாறு நாம் ஆராதனைக்குள்ளாக கடந்து செல்லலாம். उसी प्रकार आज भी हमारा परमेश्वर कौन है, वो मेरे जीवन में क्या क्या करता है, उन बातों को अध्ययन करके फिर आराधना में जाएं. இதற்கு ஆதாரமாக வாசிக்கலாம் யோபு 42 அதிகாரம், யோபு 42 9 வசனம். 9वां वचन. यह सुन, तेमानी एलीपज, सूही बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की. அப்பொழுது தேமானியனான எலிப்பாசும் சுகேனான பில்காத்தும் நாகாமாத்தன சோப்பாரும் போய் கர்த்தர் தங்களுக்கு சொன்னபடியே செய்தார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் யோபின் முகத்தை பார்த்தார். ये सुन, तेमानी तलिपज, शूही बिल्दद और नामाती सोपर ने आकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की. ஹிந்தியில் தேவன் ஜெபத்தை கேட்டார் என்று எழுதியிருக்கு. ஆனால் தமிழ் அனுவாதில் கர்த்தர் மோசேயின் யோபின் முகத்தை பார்த்தார் என்று எழுதியிருக்கிறது. हिंदी में लिखा है कि अय्यूब की प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण किया करके, लेकिन तमिल में लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब का चेहरा, मुंह को देखा. கர்த்தருடைய குணங்களில் ஒன்று அவர் நம் முகத்தை பார்க்கிறவர். परमेश्वर का गुण में एक है, वो हमारे चेहरा, हमारे मुंह को देखने वाला है. இந்த நாளிலே கர்த்தர் நம் முகத்தை பார்க்கிறவர் என்று நம்மோடு கூட இடைப்பெற விரும்புகிறார். आज हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हमारा चेहरा को देख करके हमसे बर्ताव करने वाला है. இங்கு கர்த்தர் யோபின் முகத்தை பார்க்கும்போது என்ன நடக்கிறது என்று வாசிப்போம். 10ஆம் வசனம். यहाँ जब परमेश्वर अय्यूब का मुंह को देखता है तब क्या होता है, उसको देखने के लिए 10वां वचन को देखिएगा. 10वां वचन. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया. யோபு தன் சிநேகிதனருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார். யோபுவுக்கு முன் இருந்த எல்லாவற்றை பார்க்கலும் இரண்டத்தனையாய் கர்த்தர் அவனுக்கு தந்தருளினார். जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया. கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றுகிறார். परमेश्वर ने अय्यूब का दुख को दूर किया. இங்கே கர்த்தர் யோபின் முகத்தை பார்த்தவுடன் யோபின் சிறையிருப்பு மாறி போகிறதை பார்க்கிறோம். यहाँ हम देखते हैं जब परमेश्वर ने अय्यूब का मुंह, अय्यूब का चेहरा को देखा तब उसका सारी दुख की बातें दूर चली गई. யோபுவை யோசித்தோம் என்றால் அவன் உத்தமனும் சர்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாய் இருக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். अगर अय्यूब के बारे में देखना है तो उसके बारे में हम अच्छा से जानते हैं कि वो एक खरा व्यक्ति था और वो कुकर्म से दूर रहता था और अपने को पवित्र ठहरता था और परमेश्वर का भय मानता था. வாசிக்கலாம் யோபு 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 1 अध्याय 1 वचन. उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था. वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था. ஊத்ஸ் தேசத்தில் யோபு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சர்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாய் இருந்தான். यहाँ वचन कहता है 1 वचन में, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था. वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था. இங்க எவ்வளவு பெரிய இன்ட்ரோடக்ஷனை பார்க்க முடிகிறது. अय्यूब का परिचय की गई है इस वचन में. இதை பார்க்கும்போது சிலருக்கு தோன்றலாம்,
कुछ लोग इसको देखते ही मन में इस प्रकार सोचते होंगे, யோபு யுத்தமன், அதனால் கர்த்தர் அவனை பார்த்தார், ஆனால் என்னை பார்ப்பாரா என்று. अय्यूब तो सीधा था और अय्यूब तो खरा था, अय्यूब तो पवित्र था, उसको परमेश्वर ने देखा, क्या मुझे परमेश्वर देखेगा? கண்டிப்பா ஆண்டவர் பார்ப்பார். ஏன்னா கர்த்தர் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने दृष्टि लगा करके सबों को देखा करके वचन बताता है। வாசிக்கலாம் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம். उत्पत्ति पहला अध्याय 31 वचन को हम जरा देखेंगे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा था। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார். கர்த்தர் நம்மை பார்க்கிற தேவன். यहाँ लिखा है तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा है, मतलब यह है परमेश्वर हमें देखने वाला परमेश्वर है। வேதத்திலே நெகேமியாவின் வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால், அர்த்தசாஸ்திர ராஜாவின் அரண்மனையில் திராட்சை ரசம் பரிமாறுகிறவன் நெகேமியா. नेहेमिया की कहानी को देखिएगा, वो राजमहल में वहाँ राजा के सामने वो वहाँ पिलाने हारा, इसका मतलब वो दाखरस को उसके सामने जाके लाके रखने वाला रहा नेहेमिया। இந்த நெகேமியா எருசலேமின் அலங்கம் இடிக்கப்பட்டதை கேட்டு ரொம்பவும் துக்கமுகமாய் இருந்து சில நாட்கள் உபவாசித்து விட்டு மீண்டும் வேலை செய்ய அரண்மனைக்கு போகிறான். हम जानते हैं ये नेहेमिया यरूशलेम की शहरपना जब टूट पड़ी थी, गिर पड़ी थी, उसकी हालत को सुन करके और अपने राजा से छुट्टी मांग करके कुछ दिन के लिए वहां गया और काम को पूरा करने के बाद फिर वही राजमहल में राजा के सामने लौट आया। அந்த நாட்களில் ராஜாவுக்கு பரிமாறும் பொழுது ஒருவரும் துக்கமாய் இருக்கக்கூடாது என்று ஒரு ரூல் அங்க இருக்கிறது. उस समय राजा को कोई भी कुछ खाना खिलाता हो या कुछ भी पिलाता हो, कुछ भी सामने रखता हो, जो रखने वाला का चेहरा में कोई दुख का नजर नहीं होना चाहिए। இது நெகேமியாவுக்கு நன்றாக தெரியும். इस बात को नेहेमिया अच्छी तरह जानता था। இப்போ நெகேமியா ஒரு அளவுக்கு தன்னை தேற்றி கொண்டு சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி தன்னை காட்டித்தான் அந்த வேலை செய்திருப்பான்னு நான் யோசிக்கிறேன். मैं सोचता हूँ कि नेहेमिया जो है इसके पहले कभी भी जब राजा के सामने कुछ लाके रखता था पीने के लिए, तब उसके चेहरा में हमेशा आनंद को या हमेशा वो खुश रहता होगा। ஆனா என்ன நடக்கிறது பார்த்தோம் என்றால் ராஜா அதை கண்டுபிடித்து விடுகிறார். लेकिन वहां पे एक दिन क्या हुआ, उस प्रकार बातें हैं, नेहेमिया का चेहरा में दुख से बातें भरी थी, राजा ने उसको देख लिया। படிக்கலாம் நெகேமியா 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். हम पढ़ेंगे नेहेमिया की किताब 2 अध्याय 2 वचन। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। அப்பொழுது ராஜா என்னை பார்த்து, நீ துக்கமாயிருக்கிறது என்ன? உனக்கு வியாதி இல்லையே, இது மனதின் துக்கமே ஒழிய வேறொன்றும் அல்ல என்றார். यहाँ राजा कहता है, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। ஒரு உலக பிரமாண ராஜாவுக்கே தன்னிடத்தில் வேலை பார்க்கிற ஒருவனுடைய மனதை ஆராய்ந்து அவன் எப்பேற்பட்டவன் என்பதை அறிய முடியுமே வென்றால், एक संसार में काम करने वाले संसार के अधिकारी राजा अपने साथ काम करने वालों की बातों को ऊपर ही ऊपर अगर समझ लेता है तो நம்முடைய பரலோக தேவன் நம்மை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறார். நம்முடைய முகத்தை பார்த்து நம் நிலைமை அறிய முடியும். हमारे और आपके परमेश्वर हमारी भीतरीय बाहरीय बातों को भलीभांति समझता है, इसलिए वो आपके मुंह आपके चेहरा की बातों को अच्छी तरह समझता है। இந்த நெகேமியாவை போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் உள்ள ஒன்று வெளி ஒன்று வைத்தவர்களாக காணப்படுகிறோம். और हम भी इस नेहेमिया के समान कभी कभी दुखी दिखाई देते हैं। சில வேளையில் நாம் சிரித்த முகமாய் இருப்போம்,
बाहरी हम हंसते रहेंगे, தன்னை கெத்தா காட்டுவோம். बाहर अच्छे हम दिखते होंगे, ஆனா மனதில் अनेक வேதனைகளை வைத்துக் கொண்டிருப்போம். लेकिन मन के अंदर उदासी या मन के अंदर कई प्रकार का वेदना दुख को रखते होंगे। அதனால எங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாலிசி உண்டு, யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. इसलिए इन्ना- संसार में इस प्रकार लोग कहते हैं किसी को देख करके तुम उसका न्याय मत चुकाओ, என்ன கேள்விப்பட்டாலும் சரி அதை மெடிடேட் பண்ணக்கூடாது. और कुछ भी बात को किसी के द्वारा सुनते हो तुरंत तुम उसका हल या उसका तुरंत निर्णय में मत आओ। சரி. மீண்டும் யோபுவின் வாழ்க்கைக்கு வருவோம். फिर से हम अय्यूब की कहानी में आएंगे। கர்த்தர் யோபின் முகத்தை பார்த்தபோது அங்கே என்ன நடக்கிறது என்று வாசிக்கலாம். देखिए, जब परमेश्वर ने अय्यूब के चेहरा को देखा तब वहां क्या बातें हुई। யோபு 42 அதிகாரம் 10வது வசனத்தை பார்க்கலாம். हम उस वचन को देखेंगे फिर से 42 अध्याय अय्यूब की किताब 10वां वचन। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார். लिखा है परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया। கர்த்தர் யோபின் முகத்தை பார்த்தபோது முதலில் அவர் செய்த காரியம் என்ன? அவன் சிறையிருப்பை மாற்றுகிறார். पहले जब परमेश्वर ने चेहरा को देखने के बाद क्या हुआ, उसका सारा दुख को प्रभु ने हटाया। இரண்டாவது என்ன செய்கிறார்? அதே வசனத்தில் இரண்டத்தனையாக அவனுக்கு திருப்பி கொடுக்கிறார். फिर दूसरा परमेश्वर ने क्या काम किया, उस अय्यूब के लिए जितना उसने खोया 2 गुना उसने आशीष को पाया। இழந்ததெல்லாம் திரும்பி கொடுக்கிறார். जितना उसने खोया 2 गुना आशीष को पाया। நஷ்டப்பட்டதெல்லாம் 2 மடங்கு जितना கொடுக்கிறார். उसका नुकसान हुआ था उसको 2 गुना फिर वापस पाया। மூன்றாவது என்ன செய்தார் என்று பார்க்கலாம், வாசிக்கலாம். 11வது வசனம். तीसरा परमेश्वर ने क्या किया अय्यूब के जीवन में, हम पढ़ेंगे 11वां वचन। तब उसके सब भाई और सब बहिनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। அப்பொழுது அவனுடைய எல்லா சகோதரரும் சகோதரிகளும் முன் அவனுக்கு அறிமுகமான அனைவரும் அவனிடத்தில் வந்து அவன் வீட்டிலே அவனோடு போஜனம் பண்ணி. இங்கே என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்தால், यहाँ इस वचन में क्या हो रहा है देखिए, விலகி போனவர்கள் எல்லாம் அவனை வீடு தேடி வருகிறார்கள். अय्यूब को जो लोगों ने हटा दिया, जो हट के अपने अपने घर चला गया, वो सब लौट करके फिर अय्यूब के पास आने लगे। சில நேரங்களில் நம் வாழ்க்கையில் நம்மோடு கூட இருந்தவர்கள் திடீரென்று விலகி போவார்கள். कभी कभी हमारे साथ रहने वाले अचानक हमें छोड़ के जाएंगे। அது காரணம் என்னவென்றால், उसका कारण ये हो सकता है, நம்மனால் அவங்களுக்கு எந்த ஆதாயம் இல்லை என்று அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள். वो सोचते होंगे हमसे उनका कोई लाभ नहीं है इसलिए छोड़ दिए। ஆனால் இங்கே கர்த்தர் யோபின் முகத்தை பார்த்தபோது என்ன நடந்தது? लेकिन जब अय्यूब का चेहरा को, मुंह को परमेश्वर ने देखा तो क्या हुआ, அவனை விட்டு விலகி போனவர் எல்லாரும் அவனை தேடி வருவதற்கு கர்த்தர் செய்கிறார். परमेश्वर ने ऐसे आशीष दी, ऐसे काम किया, जितने लोगों ने अय्यूब को छोड़ के चला गया था वो सब वापस उसी के पास आने दिया। அது மாத்திரமல்ல, அவனோடு வீட்டில் எல்லாரும் சாப்பிட வைக்கிறார். ना केवल ये बात तो हुई, सब लोग आके अय्यूब के घर में भोजन करने लगे। அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக வைக்கிறார். कई लोगों का आशीष का कारण हो गई। நான்காவது கர்த்தர் என்ன செய்தார்? வாசிக்கலாம். और चौथी बात को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने क्या किया, 12 வசனம். 12वां वचन। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। கர்த்தர் யோபுவின் முன்னிலைமையை பார்க்கிலும் அவன் பின்னிலைமையை ஆசீர்வதித்தார். இங்கே கர்த்தர் பின்னிலைமையை ஆசீர்வதிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். यहाँ हम देखते हैं अय्यूब के पहले के दिनों से अधिक आशीष परमेश्वर ने दी।
கர்த்தர் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கணக்கு வைத்து செய்கிறார். एक एक बात की हिसाब करते हुए परमेश्वर अय्यूब के जीवन में कर रहा। அவர் மறப்பதற்கு அவர் மனிதன் அல்ல. वो भूलने के लिए मनुष्य नहीं है। நாம் கடந்து வந்த பாதைகளை கர்த்தர் நன்கு அறிந்திருக்கிறார். हमारे बीते हुए दिनों को जो रास्ता है उनको परमेश्वर भलीभांति जानता है। நம்முடைய ஒவ்வொரு பாடுகளையும் கண்ணீரையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார். हमारे हर एक दुख आंसू को परमेश्वर समझता है। வெளியில் நாம் சந்தோஷமாக இருப்போம், हम बाहर शायद आनंदित दिखाई देते होंगे, தனிமையிலே பல கவலைகள் கண்ணீரோடு கூட நாம் பாரத்தை சுமந்து கொண்டே இருப்போம். लेकिन कमरे के अंदर अकेला में जब बैठेंगे कई दर्द वेदना दुख के साथ रहेंगे शायद। இங்கே யோபுவுக்கு கர்த்தர் செய்த காரியத்தை பார்ப்போம் என்றால், यहाँ अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या बातों को किया है उसको जरा और देखिए। அவனை குறித்து பேசினவர் எல்லாம் வாயடித்து போகும்படியாக கர்த்தர் பின்னிலைமையை ஆசீர்வதிக்கிறார். उसके विरोध में जितने लोग पहले बोल रहे थे, अय्यूब के विरोध में जो कुड़कुड़ा रहे थे, बोल रहे थे, उन सारे मुंह को परमेश्वर ने बाद में देखते हैं बंद कर डाला। ஐந்தாவது காரியமாக வாசிக்கலாம், 13ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். पांचवी आशीष को, पांचवी बात को, 13 वचन को हम पढ़ेंगे, पता चलेगा। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। 7 குமாரரும் 3 குமாரத்திகளும் அவனுக்கு பிறந்தார்கள். अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। இங்கு கர்த்தர் அவனுக்கு சந்ததியை கொடுக்கிறார். यहाँ अय्यूब की वंशावली को परमेश्वर और लंबा कर रहा है, தலைமுறையை கொடுக்கிறார். और उसकी पीढ़ी पीढ़ी में संतानों को दे रहा है। யோபின் தீபத்தை அணைய விடவில்லை. और अय्यूब की जो दिया जल रहा था उसको परमेश्वर ने बुतने नहीं दिया। ஆறாவதாக வாசிக்கலாம், 16 17ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். और छठवीं आशीष को हम पढ़ने के लिए 16वां 17वां वचन को पढ़ेंगे। 6 आशीष क्या है उसमें? इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। இதற்கு பின் யோபு 140 வருஷம் உயிரோடு இருந்து 4 தலைமுறையாக தன் பிள்ளைகளையும் தன் பிள்ளைகளையும் கண்டான். 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। யோபு நெடுநாளிலிருந்து பூரண வயதுள்ளவனாய் மரித்தான். आखिरी वचन कहता है अंत में अय्यूब वृद्धास्त्व दीर्घायु होकर के मरा। யோபு தன் 4ஆம் தலைமுறையை காணத்தக்கதாய் பூரண வயதுள்ளவனாய் மரிக்கிறான். 4 पीढ़ी तक देखने के लिए अय्यूब का उम्र आयु इतनी लंबी हो गई है। இங்கே பார்த்தோம் என்றால் யோபின் முகத்தை கர்த்தர் பார்த்தவுடன் எல்லாவற்றையும் மாற்றி விடுகிறார். यहाँ हम देखते हैं जब परमेश्वर ने अय्यूब का चेहरा को देखा, अय्यूब को देखा, दुख को देखा, तब सारी बातों को उसने बदला। கர்த்தர் ஒரு மனிதனை பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் மாறிவிடுகிறது. जब परमेश्वर एक व्यक्ति को देखता है तब सारी बातें बदलती है। யோபின் முகத்தை பார்த்து இப்படி ஆண்டவர் செய்வாரானால் அப்படி யோபின் முகத்தில் என்ன தேவன் பார்த்தார்? अगर अय्यूब के मुंह को देख करके परमेश्वर इतनी सारी बातों को कर रहा है तो अय्यूब में क्या बातें पाई गई? வலியை பார்த்தார். दर्द को देखा। இங்கு யோபுவுக்கு எதிர்நிமித்தமான வலி, இழப்பு, ஒரு வேதனை. और दूसरा उसका खोई हुई बातें, नुकसान, बहुत बड़ा एक दुख है। தன் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் இழந்து போனது. अपने सारे संतानों को अय्यूब ने एक वक्त में खोया। ஒரு மனிதனுக்கு தாங்க முடியாத ஒரு வலி என்றால் மரண வலி. एक व्यक्ति को अगर बहुत बड़ी दर्द होती है, सबसे ज्यादा दर्द को इसको कहते हैं वो मृत्यु का दर्द है। நம் குடும்பத்தில் யாராவது மரித்து போய்விட்டால் அவர்களை மறப்பது சுலபமான காரியம் அல்ல. किसी की मृत्यु अगर आपके और मेरे घर में हो जाती है तो उस बात को भूलना आसान नहीं है। எங்க வீட்ல பாத்தீங்கன்னா எங்க மாமனார் இருந்து 14 வருடங்கள் ஆகிறது. मेरे घर में मेरे मामा जी की मृत्यु होने के बाद 14 वर्ष हो गए। ஆனா இன்னைக்கும் என் மனைவி அவங்க அப்பாவை நினைச்சு இன்னியும் அழுது கொண்டே இருப்பாள். लेकिन मेरी पत्नी जो है घर में कभी कभी मैं देखता हूँ कि वो अपने पिता को सोचती हुई वो रोती रहती है। அதுபோல இங்கே யோபுவிற்கு இழப்பினால வேதனை. यहाँ अय्यूब के नुकसान, बहुत बड़ा लॉस हुआ, उसके लिए दर्द हुआ। அடுத்து நஷ்டத்தினால் வேதனை,
बहुत बड़ा उसके जीवन में दर्द उठ गया दुख के எல்லா चलते। சொத்துக்களும் அவனுக்கு இருந்து எல்லாமே ஒரே நாளில் அழிந்து விட்டது. सारी संपत्ति था, धनवान था, लेकिन सब कुछ एक ही दिन में उसने खोया। அடுத்தது பலவீனத்தினால் வேதனை. फिर उसका शरीर की दुर्बलता, बीमारी, इस सारी बातों के चलते वेदना। சரீரத்தில் சீல் வடிந்து கொண்டே இருக்கிறது. उसका शरीर से पस निकलता था। யாரும் அருகிலே வர விரும்பவில்லை. कोई भी उसके पास नजदीक आना नहीं चाहता था। அடுத்து மற்றவர்களின் வார்த்தையினாலே வலி. दूसरा अपने दोस्त और लोगों की जो बोली के चलते घायल किया गया। மனைவி சொல்கிறார், தேவனை தூசித்து உயிரை விடும். पत्नी कहती है, क्यों जिंदा है, अपने परमेश्वर को खोज करके तुम मर जाओ। நண்பர்கள் சொல்கிறார்கள், நீ ஏதாவது தப்பு செய்திருப்பாய், அந்த தப்பு இந்த தப்புன்னு பண்ணியிருப்பாய் என்று சொல்லுகிறார்கள். दोस्त लोग कहते हैं, आपने गलती किया है, आपकी गलती के चलते ही आपके सिर पर आ पड़ा है। ஆறுதலான வார்த்தையை கேட்க வேண்டிய நேரத்தில் யோபுவை வார்த்தையினாலே காயப்படுத்துகிறார்கள். उसको चाहिए था तसल्ली का या उत्साह का शब्द, लेकिन उसके उल्टे में कई घायल के शब्द उसकी ओर लोग बोलने लगे। அது மாத்திரமல்ல, தேசத்தாரின் பரியாச வார்த்தைகள். और लोग टट्टा करके बहुत सी बातों को उसके विरोध में बोले। அப்படியாக இத்தனை வலிகள் கர்த்தருக்கு யோபின் முகத்தில் தெரிந்தது. इतनी सारी दुख, दर्द, वेदना की बातें को परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर ही ऊपर चेहरा में पढ़ இந்த लिया। வலிகளை பார்த்து கர்த்தர் என்ன நினைக்கிறார்? इसको देखने के बाद परमेश्वर ने क्या सोचा? இதற்கு மேலாக யோபு தாங்க மாட்டான். इसके बाद अय्यूब को सहा नहीं जाएगा। யோபின் சோதனையின் முற்றுப்புள்ளி எங்கே வருகிறது என்றால், और अय्यूब का दर्द और वेदना को कहां अंत हो रहा है मालूम है? இதுக்கு மேலே என் பிள்ளை தாங்க மாட்டான் என்று கர்த்தர் தம்மை பார்க்கும்போது வருகிறது. जब परमेश्वर ने सोचा कि अय्यूब आगे सहा नहीं जाएगा, नहीं सहेगा, इसके बाद परमेश्वर अपनी सारी आशीष को उंडेलने लगा। சங்கீதம் 22 24 வசனத்தை வாசிக்கலாம். भजन संगीता 22 का 24 को देखिएगा, पढ़ेंगे। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उसे घृणा करता है और न उसे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। உபத்திரவப்பட்டவனுடைய உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமா எண்ணாமலும் அருவருவாக்காமலும் தம்முடைய முகத்தை அவனுக்கு மறைக்க மாட்டார். கர்த்தருக்கு தெரியும் இதுக்கு மேல நம்மனால தாங்க முடியாது. परमेश्वर को मालूम है कि इसके बाद जो है अपना बेटा अपना बेटी सह नहीं पाएगा। யோபுவை பார்த்தோம் என்றால் எல்லாம் நடந்ததும் 1ஆம் வசனத்தை அதிகாரத்தில் சொல்கிறான், கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் என்று சொல்லி துதிக்கிறான். अय्यूब सबको खोने के बाद, उसके बहुत बड़ी नुकसान होने के बाद अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले भी लिया। 2ஆம் அதிகாரத்தில் வசனத்தில் பார்க்கிறோம், பாசிட்டிவும் கிடையாது, நெகட்டிவும் கிடையாது, அமைதியாக இருக்கிறார். और दूसरा अगर अध्याय में हम देख सकते हैं, उसका पॉजिटिव भी नहीं है और उसका नेगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल में शांत होकर अपने जीवन बिता रहा था। ஆனா 7ஆம் அதிகாரத்தில் பார்த்தா வாசிக்கலாம், யோபு 7:11. 7वां अध्याय में हम पढ़ेंगे, 7वां अध्याय अय्यूब उसका 11 वचन, 7 का 11। इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूँगा, अपने मन का खेद खोल कर कहूँगा और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूँगा। ஆகையால் நான் என் வாயை அடைக்காமல் என் ஆவியின் வேதனையில் பேசி என் ஆத்துமாவின் கசப்பினால் அங்கலாய்ப்பேன். என் வாயை அடைக்காமல் என் ஆவியின் வேதனையில் பேசி என்று சொல்கிறார். अय्यूब कहता है, इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा, अपने मन का खेद खोल कर कहूंगा और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। துதித்து கொண்டிருந்தவன் அமைதியாயிருந்தவன் இப்பொழுது வேதனையிலே பேச ஆரம்பிக்கிறான். स्तुति करने लगा था और सब कुछ खोने के बाद धन्यवाद देता था, लेकिन यहाँ वो कुड़कुड़ाना शुरू किया। அந்த ஆவியின் வேதனையில் என்ன அடக்க முடியாம பேசுகிறான். और अपने भीतर का आत्मा का दर्द को वो सह नहीं पाया, इसलिए मुंह से कहने लगा। என் ஆத்மாவின் கசப்பினால் நான் அங்கலாய்க்கிறேன். இந்த வலிக்கான காரணம் என்ன? कहता है, मेरे अंदर अपने जीव की
कड़वाहट के कारण मैं कुड़कुड़ाता हूं करके कहता है। என் துக்கம் சொல்லி முடியாது என்று யோபு 6ஆம் அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார். 6 अध्याय 3 वचन में अय्यूब कहता है कि मेरे दुखों का कोई गिनती नहीं है। என் துக்கம் சொல்லி முடியாதது. कहता है मेरे दुख को मैं नहीं कह पाऊंगा। கர்த்தர் நம் முகத்தை பார்க்கிற தேவன். परमेश्वर आपके और मेरे मुंह को देखने वाला परमेश्वर है। நம் உள்ளத்தில் உள்ள வேதனைகளையும் கஷ்டங்களையும் பார்க்கிற தேவன். आपके दिल की दुख और दिल की बातें उसको समझने वाला है। யாத்திராகமம் 3:7 வாசிக்கலாம். निर्गमन 3 अध्याय 7वां वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 3:7। என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து ஆலோட்டிகளின் நிமித்தம் அவர்கள் இருக்கிற கூக்குரலை கேட்டேன். அவர்கள் படுகிற வேதனைகளை அறிந்திருக்கிறேன். இங்கே பார்த்து அறிந்திருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். यहाँ लिखा है कि मैंने देखा, मैंने अपनी प्रजा के दुख को, प्रजा की दर्द को देखा करके परमेश्वर कहता நாம் है। எவ்வளவு தாங்க முடியும் என்று கர்த்தருக்கு தெரியும். हम जितना या कहां तक सह सकते हैं उन बातों को परमेश्वर जानता है। இன்று அந்த ஆராதனை வேளையிலே கர்த்தரிடத்தில் நாம் சொல்ல போகிறோம், ஆண்டவரே என்னை பாரும், ஆண்டவரே நான் போகிற பாதையை நீர் அறிந்திருக்கிறீர், நான் படுகிற பாடுகளை நீர் பார்க்கிறீர் என்று आज परमेश्वर से कहने जा रहे हैं, प्रभु तू भली भांति समझता है मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी सारी वेदना को तू समझता है, देखता है। கர்த்தாவே என்னால் தாங்க கூடுமானால் உம் பலன் தந்து என்னை நடத்தும். हे प्रभु मुझे बल दे और अगुवाई कर। என்னால் இது தாங்க இதுக்கு மேல இதையும் தாங்க முடியாது என்றால் ஆண்டவரே என் சிறையிருப்பை மாற்றி போடும் என்று கேட்க போகிறோம். हम प्रभु से विनती करेंगे, मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मैं सह नहीं पाता हूं प्रभु, इसलिए मुझे बल दे और अगुवाई कर। கர்த்தர் இந்த வேளையிலே நம் மத்தியிலே வந்து நம் முகத்தை பார்க்க விரும்புகிறார், நம் சிறையிருப்பை மாற்ற விரும்புகிறார். आज परमेश्वर आपके और मेरे बीच में आकर के हमें देखने के लिए चाहता है और हमारे बातों को बंधुआई से हमें छुड़ाने के लिए चाहता है।